people, the different things they will tell. So अलग-अलग लोगों की अलग-अलग तरीका है बताने का, तो उन्होंने बोला है. But when we see the things that are written in the book of Hebrews, in general we can come to the conclusion that Paul has written this letter. लेकिन यदि आप इब्रानी की पत्री को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके तरीके को देखेंगे, तो हमें ये सामान्य तौर से ये लगता है कि पौलुस ही है जिसने इस किताब को लिखा है. For an ordinary New Testament believer, we all know two books in the New Testament are very difficult to understand other than Revelation. एक साधारण नए नियम के विश्वासी होने के नाते इस नए नियम में दो किताबें ऐसी हैं प्रकाशित वाक्य के अलावा जो समझने में थोड़ा मुश्किल होता है. What are they? वो कौन से हैं? Number one is the book of Romans. पहला रोमियो की पुस्तक को समझना थोड़ा And मुश्किल. secondly, the book of Hebrews. और दूसरा उसमें आता है इब्रानी की पत्री. Unless you have a little bit knowledge about the Old Testament, it is very difficult to understand these two letters. जब तक कि आपको पुराने नियम का अच्छा ज्ञान ना हो, तब तक इस दो किताबों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है. Especially the book of Romans is written by Apostle Paul for the saints that are scattered in Rome. खास करके रोमियो की पत्री जो पौलुस प्रेरित ने लिखा है, वो उन संतों को लिखा है जो रोम में इधर-उधर बिखरे हुए थे. Because many people in Rome, they were against the Christianity. क्योंकि बहुत सारे लोग रोम में मसीहियों के खिलाफ थे. That's why in the book of Romans, much is written about justification, how you can be made righteous. और इसलिए बहुत सारे बार पौलुस रोमियो में धर्मी ठहराए जाने के विषय में बार-बार कहता है. Because they are not believing in Christianity. क्योंकि वो मसीहत पे विश्वास नहीं कर रहे Some थे. of them, they may be believing in Judaism, but not in Christianity. कुछ लोग तो थे जो यहूदी मत पे विश्वास कर रहे थे, लेकिन मसीही नहीं थे. But when we come to the book of Hebrews, लेकिन जब हम इब्रानी की पत्री में आते हैं, this letter specifically is written to those believers who accepted Lord Jesus Christ as their Savior from Jewish background. ये उन खास लोगों के लिए लिखा गया है जिन्होंने अपने यहूदी मत को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है. So because of that, the fellow Jews, they started persecuting these converted Jews. और इस कारण से ये जिन्होंने यहूदी मत को छोड़कर मसीह हो गए थे, जो यहूदी लोग हैं, उन्होंने इनको सताना शुरू कर दिया. So in general, we all know very well, the Jewish people won't believe in the first coming of Lord Jesus Christ. They won't accept that Christ who came 2000 years ago is Messiah. जैसे हम सामान्य तौर पर ये जानते हैं कि यहूदी लोग जो प्रभु मसीह के पहले आगमन जो पैदा हुआ था उस पर विश्वास नहीं करते हैं, यानी कि 2000 साल पहले जो प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ था, यहूदी लोग उसको नहीं मानते. So even today they are waiting for Messiah. तो आज के दिन भी वो मसीहा के आने का इंतजार कर रहे हैं. Even today the Jewish people in the land of Israel, they won't believe in the first coming of Lord Jesus Christ. आज भी वर्तमान में यरूशलेम में रहने वाले यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन पर विश्वास नहीं करते. Of course they also will believe him, but during the time of tribulation in future. और ये बात और है कि वो आने वाले भविष्य में जब वो महाक्लेश में से पार हो जाएंगे, उस समय वो इस बात को मानेंगे. We all know, according to the divine timetable, the immediate thing that is going to happen is the rapture of the church, the catching up of the saints to the midday. जब हम सब ये बात को जानते हैं कि स्वर्गीय समय सारणी के हिसाब से अब जो बड़ा जो काम होने वाला है वो ये है कि कलीसिया को उठाया जाना है, जिसको हम रैप्चर कहते हैं. See, right from the day of creation of Adam and Eve, everything is being happening at the divine timetable, according to the divine timetable. यदि आप देखें सृष्टि के आरंभ से, जब से आदम और हवा की सृष्टि हुई, सब कुछ समय के अनुसार उसी सारणी से चल रहा है. God will act according to His own timetable, not our timetable. परमेश्वर अपने समय सारणी से चलता है, ना कि हमारे टाइम और घड़ी से. God got times. परमेश्वर का अपना समय है. In the marriage at Cana, और गलील के काना में जो शादी हो रही थी, when the wine was exhausted, जब दाखरस समाप्त हो गया, Mary, the mother of Jesus, she came to Jesus
and do something, and I mean, see that the wine may be once again arranged. तो मरियम जो यीशु की माता थी, यीशु के पास आई और उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी समस्या है तो कुछ करो ताकि कुछ इंतजाम हो सके। But what is the answer of Lord Jesus Christ? लेकिन प्रभु यीशु मसीह का उत्तर क्या था? My time has not come. हे मेरी माता, मेरा समय नहीं आया। God got times. परमेश्वर का अपना समय है। He will not do things according to our timetable. He is having his own timetable. हमारे समय से वो काम नहीं करता है, उसका अपना समय है। See, Paul writes to Galatians. देखिए, पौलुस जब गलतियों को लिखता है regarding the first coming of Lord Jesus जब प्रभु Christ. यीशु मसीह के पहले आगमन के विषय में लिखता है। Yeah, in Galatians chapter 4 verses 4 and 5. और गलती 4 अध्याय 4 और 5 वचन में जब हम देखते हैं, There it is written, in the fullness of time, the Father sent His Son. वहाँ पर यूं लिखा है कि समय के परिपूर्णता में पिता ने अपने पुत्र को भेजा। So God got some time. तो परमेश्वर के पास अपना समय है। In the fullness of time, the Father thought this is the right time to send my Son to this earth. और उस समय की परिपूर्णता में जब वो समय पूरा आ गया, प्रभु ने परमेश्वर पिता ने देखा अब समय है पिता पुत्र So को these भेजेगा। Jewish people, they won't believe even today the first coming of Lord Jesus. तो यहूदी लोग आज के दिन भी प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन को नहीं They मानते are not accepting Him as Messiah. और उसको वो मसीहा के रूप में नहीं मानते। Even today, they are waiting for the coming of Messiah. आज भी वो मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं। And as I have already mentioned, in the coming days, during the time of tribulation, they will come to know that He is the true Messiah and they will confess it. और जैसे कि मैंने बताया कि आने वाले समय में भविष्य में जब वो क्लेश में से होकर गुजरेंगे, वो इस बात को समझेंगे और उस बात को मानेंगे, अंगीकार करके ग्रहण करेंगे कि यही मसीहा है। So according to the divine timetable, तो स्वर्गीय समय सारणी के हिसाब से very shortly the believers, whether they are dead or living, they are going to be caught up to the midday. बहुत ही जल्द जो विश्वासी या वो मर गए हैं या जीवित हैं, दोनों के दोनों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास उठाए जाएंगे। And they will go to the midday. और वो आकाशीय स्थान में उठाए जाएंगे, बादलों मध्य आकाश में जाएंगे। Yeah, then see, that is what Paul is writing to Thessalonians. और यही बात थिस्सलुनीकियों में पौलुस लिखता है। The dead in Christ shall raise first, and we, those of us who are living, will be caught up, who are believers, to the midday to meet the bridegroom. तो मसीह में मृतक जो है वो पहले जिलाए जाएंगे और उसके बाद हम जो जीवित हैं उनके साथ मिलकर के हवा में प्रभु के साथ उस मध्य आकाश में मुलाकात Now, करेंगे। when we are caught up to the midday, the tribulation in this world starts. और जब हम मध्य आकाश में परमेश्वर से मिलेंगे, उसके बाद ये महाक्लेश शुरू होगा, क्लेश शुरू होगा। So 7 years tribulation. 7 साल का क्लेश। So we will be there in the midday for 7 years, receiving our rewards and also the marriage of the Lamb and also the marriage supper of the Lamb. तो उस मध्य आकाश में प्रभु के साथ हम अपने प्रतिफल को पाएंगे और मेमने का विवाह होगा और हम परमेश्वर के साथ संगति Three करेंगे। important things during those 7 years in the midday. और वो 7 साल के काल में उस मध्य आकाश के अंदर 3 मुख्य बातें होंगी। That is the believers' judgment, believers receiving their rewards. कि सबसे पहला विश्वासियों का न्याय होगा और विश्वासियों को प्रतिफल मिलेगा। And then the marriage of the Lamb. और उसके बाद मेमने का विवाह That होगा। is you and I, the believers will be the bride and Lord Jesus Christ will be the bridegroom. और कि आप और मैं जो कलीसिया है, विश्वासी है, वो दुल्हन होंगी और हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह होगा। And then the marriage supper, शादी होने के बाद नहीं और शादी होने के बाद जो विवाह का भोज होता है वो होगा दावत। So without dawat it is not a marriage, you know. दावत के बिना, खाने के बिना शादी कैसा? Yeah, earlier some 50 years, 40 years back, 40-50 साल पहले if anybody goes to marriage, यदि कोई शादी विवाह में जाता था, शादी के बाद वापस आने के बाद, शादी में वापस आने के and बाद, those people who have not gone to the marriage, they used to ask. तो जो लोग शादी में नहीं गए वो उनसे पूछते हैं। क्या पूछते थे? क्या पूछते हैं? अरे दूल्हा कैसा है, दुल्हन कैसा है? How is the bride? How is the groom? Today it is changed. आज के दिन तो ये बदल गया है। ये दूल्हा दुल्हन के बारे में कोई नहीं पूछ रहे, दावत कैसा है?
Nobody is asking about bride and bridegroom. They said, how was the food? Yeah, mutton biryani diye, Chicken biryani, mutton biryani, chicken fry hai. chicken fry. So everybody is asking about the dawat only. सब कोई दावत के विषय में बात करते हैं। So that's why knowing our minds, तो इसीलिए हमारे मन को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ने शादी के बाद दावत भी अरेंज करे। तो विवाह के बाद वो मेमने का विवाह के बाद भोज भी है। So during those 7 years, these 3 important things will be happening in the middle. So उन 7 साल के काल में ये 3 महत्वपूर्ण बातें होने वाली हैं। And what about on earth? So अब पृथ्वी के ऊपर क्या होगा? Yeah, we all know the 7 years tribulation under the ruling of the Antichrist, the world leader. और हम जानते हैं कि 7 साल का जो काल होगा वो क्लेश का काल होगा और ये पृथ्वी उस कृष्ण विरोधी के अधीनता में होगी। Now all the things that are happening, all the wars that are going in Israel, all these things are pointing towards that end only today. और आज के वर्तमान में आप देखेंगे इजराइल में जितने भी युद्ध हो रहे हैं उसके चारों ओर युद्ध हो रहे हैं जो विश्व में चल रहा है, ये सारी बातें उसी घटना को अंकित करती हैं। Yeah, according to my understanding, at least 3 major wars are going to be there in the human history. और जब जहाँ तक मेरा समझ की बात है, 3 ऐसे भयंकर युद्ध होंगे जो लोगों के इतिहास में होंगे। I am not talking about India-Pakistan war or Russia-Ukraine war. Not these wars. These are not important. What is happening in Israel is very important. ये इंडिया पाकिस्तान की युद्ध या यूक्रेन रशिया का युद्ध इनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जो युद्ध इजराइल में होने वाला है उन बातों को मैं Israelites are God's people. इजरायली लोग परमेश्वर के लोग हैं। What is happening in Israel is very important to us. और जो बातें इजराइल में घट रही है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Today more than 50 wars, छोटा-मोटा wars are going on in this world today. आज के वर्तमान में इस समय आज कम से कम 50 ऐसे युद्ध छोटे-मोटे चल ही रहे But हैं। all those wars are not important for us. लेकिन वो सारे 50 जो युद्ध हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। About all those wars, it is not written in Bible. और उन युद्ध के बारे में बाइबल में नहीं लिखा गया है। But whatever is happening in Israel is very important. लेकिन जो कुछ भी घटना इजराइल में हो रही है वो बहुत ही So महत्वपूर्ण है। whatever is happening in Israel today, everything is pointing to only one end. That is, very shortly, the world leader, the false peacemaker, is going to appear. So ये सारी बातें घटनाएं इस ओर अंकित कर रही हैं कि बहुत ही जल्दी वो झूठा भविष्यवक्ता, वो झूठा कृष्ण विरोधी वो आने वाला है और बहुत ही जल्दी प्रकट That's होगा। what we read in Hebrews 10:25. As the day of the Lord is approaching, means that day is approaching. और यही बात हमने इब्रानी 10:25 में पढ़ा था कि जो उस दिन को यानी प्रभु के दिन को आते देखो त्यों इकट्ठा होना ना छोड़ो। So the world leader will come. So जो इस संसार का जो अगुवा है वो आएगा। Last time also I told from Revelation 17:10 last year. पिछली बार मैंने बताया था प्रकाशित वाक्य 17 और 10 से About 7 kings and 7 kingdoms, and the final world king will be the Antichrist. कि 7 राज्य और 7 राजाओं के विषय में और उसके बाद आखिर में जो राजा आएगा वो होगा कृष्ण विरोधी। And he will be there for few years, few days. और वहां पर वो कुछ समयों कुछ सालों तक होगा। That is only 7 years. और वो केवल 7 साल का समय काल Now है। after 3.5 years of tribulation, और 3.5 साल के क्लेश के बाद the whole world will be ruled by that Antichrist. और उस कृष्ण विरोधी के द्वारा ये पूरा संसार जो है राज किया जाएगा। And during that time, in the middle of that tribulation period, that is after 3.5 years, और उन दिनों में जब हम बीच में पहुंचेंगे 3.5 साल के समय काल खत्म हो जाएगा। those 7 years tribulation got different names in the Bible. ये 7 साल का जो क्लेश का समय है वो अलग अलग नाम से बाइबल में जाना जाता It है। is known as the 7 years tribulation period. ये 7 साल का क्लेश का समय कहा जाता It है। is also known as the Daniel's 70th week, 70. और वो दानियल के 70वें सप्ताह के विषय में भी कहते And हैं। it is also known as the day of Jacob's
trouble in Jeremiah chapter 30 verse 7. और यिर्मयाह 30 अध्याय और 7 वचन के अनुसार याकूब के पीड़ा के दिन भी कहा गया है। Because the people of Israel, Jacob, they will be put to much trouble. क्योंकि याकूब के संतान जो इजरायली है वो बहुत सारे समस्याओं में परेशानियों में So डाले the जाएंगे। same 7 years tribulation got different names in the Bible. और इसलिए वो 7 साल का जो क्लेश का समय है उसका अलग अलग नाम है बाइबल में। After 3.5 years tribulation, और इस 3.5 साल के क्लेश के बाद and now this Antichrist wanted to seat himself in the Jerusalem temple and he wants the worship. और ये जो कृष्ण विरोधी है अब अपने आप को उस यरूशलेम के मंदिर के ऊपर स्थापित करना चाहता है, बैठना चाहता है और वो वहां से राज्य करना चाहता है। And he wants to offer the abominable sacrifice. और वो वहां पर घृणित बलिदान को चढ़ाना चाहता है। We all know right from the beginning of creation, the desire of Satan is to be worshipped by the people. हम सब जानते हैं कि शुरुआत से ही जब से सृष्टि हुई है वहां से ही शैतान के मन में एक बड़ी लालसा है कि लोग उसकी आराधना करें। Oh, when should I go to the seat of the Most High? और उसने ये मन में सोचा कि मैं कब परम प्रधान के तुल्य अपना राज सिंहासन Oh, the लगाऊंगा। Lord is being worshipped by all. I want to be worshipped by all. और परमेश्वर सबके द्वारा परमेश्वर की आराधना होती है, मैं भी अब उस आराधना को चाहता हूँ। So he wants to receive the worship after 3.5 years tribulation. सो 3.5 साल के क्लेश के बाद वो अपने लिए आराधना ढूंढेगा। Then the eyes of the Jews will be opened. और उस समय यहूदियों की आंखें खुल जाएंगी। He is not true peacemaker. और ये सच्चा शांति वाहक नहीं He है, is not Christ. ये मसीह नहीं है, He is not the peace giver. ये शांति देने वाला नहीं The है। one who came 2000 years ago, he is Messiah. जो 2000 साल पहले आया था वो मसीहा है। On that day, उस दिन they will start repenting. वो पश्चाताप करना शुरू करेंगे। Yeah, Jews also will come to repentance, but not today. During the tribulation time, after 3.5 years tribulation. हाँ, यहूदी भी पश्चाताप करेंगे लेकिन आज नहीं, बल्कि उस क्लेश के समय 3.5 साल जब पार हो जाएगा उसके बाद वो पश्चाताप Oh, करेंगे। for that day the Lord is waiting. और उस दिन के लिए परमेश्वर इंतजार Oh, करता है। when my people recognize me as Messiah. ओ मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं मुझे मसीहा के रूप में मानेंगे। And because they reject this Antichrist, और क्योंकि उन्होंने कृष्ण विरोधी का विरोध किया, so the Antichrist will become more furious. तो ये कृष्ण विरोधी और अधिक बौखला जाएगा। Then he will increase the tribulation, and that's why the next 3.5 years tribulation is known as Great Tribulation. और तब वो उस क्लेश को बढ़ा देगा और इसलिए बाकी के 3.5 साल को हम महाक्लेश का समय बोलते हैं। Because the Antichrist will trouble the people of God, especially the Jewish people, more and more with more intense tribulation. क्योंकि कृष्ण विरोधी इन यहूदियों को और अधिक प्रताड़ना देगा और अधिक उनको दबाव देगा। Of course, God will protect them in His own way. इसमें कोई शक नहीं कि परमेश्वर अपने तरीके से अपने लोगों को बचाएगा। And after that, the second coming of Lord Jesus और उसके Christ. बाद प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन He होगा। will come to the earth to Mount of Olives. और वो प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर अपना पैर रखेगा। Yeah, in a short way, after that, okay, we will be having Armageddon war. और उसके बाद जो अरमगदोन की लड़ाई होगी, That is the second future war waiting. और ये दूसरा एक भविष्य का आने वाला बड़ा युद्ध So है। first future war is, तो पहला आने वाला युद्ध क्या है? yeah, see this at the rapture of the saints. कि जब मसीह उठा लिए जाएंगे। And second is Armageddon war after the tribulation period. और दूसरा अरमगदोन की लड़ाई है जो 7 साल के क्लेश के बाद होगा। Lord Jesus Christ will come with His heavenly armies. प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय सेना के साथ आएगा। All the world will be on one side, only this tiny Israel will be the other side. सारे पूरे संसार एक तरफ होंगे और इजराइल, छोटा सा इजराइल एक तरफ होगा। The America who is supporting Israel today, on that day it will become an enemy to Israel. अमेरिका जो आज इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, सहारा दे रहा है, वो उस दिन वो भी उसका विपक्ष में चला जाएगा, विरोध में हो जाएगा। And Israel one side and the whole world on the other side. एक तरफ इजराइल और पूरी दुनिया दूसरी तरफ। And almost those will be the days people will say Israel will be out totally. और अमूमन ये लोग समझ लेंगे कि अब इजराइल का पतन निश्चित है और ये खत्म हो जाएगा। At that time, उस समय the Lord will come with His heavenly armies
on behalf of the Israelites. परमेश्वर अपनी स्वर्गीय सेना को लेकर के इजराइल के पक्ष में लड़ने के लिए आएगा। स्वर्गीय सेना के साथ और कौन रहेगा? और कौन रहेंगे स्वर्गीय सेना के साथ? हाँ। If you are a believer, you also will be there. यदि आप विश्वासी हैं तो आप भी उनके साथ होंगे। यीशु मसीह को बड़े सफेद घोड़ा, हमको छोटा छोटा घोड़ा बसेगा। यीशु मसीह बड़ा सफेद घोड़े में आएगा, हमको छोटा छोटा घोड़ा दे दो काफी है। घोड़ा चलाना नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं। घोड़ा नहीं चलाना आता कोई भी समस्या नहीं है। So we also will come with the heavenly armies to fight the battle on behalf of the Israelites. तो हम भी इजराइल के पक्ष में परमेश्वर के साथ उस सेना के साथ हम भी आएंगे। What a joyful day it will be. कितना अद्भुत आनंद का समय वो होगा। Lord is fighting means victory is guaranteed. तो प्रभु अगर वहाँ पे युद्ध लड़ रहा है तो जीत तो निश्चित है। And after that there will be 1000 years reign. और उसके बाद 1000 वर्ष का राज होगा। And also some more things are there. और भी कुछ बातें हैं। Now coming to the book of Hebrew. लेकिन जब हम इब्रानी की पुस्तक में वापस Because आते हैं, these Jewish people won't believe in the first coming of Lord Jesus Christ today. क्योंकि आज के दिन ये यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन पर विश्वास नहीं करते। So those people from the Jewish background, those who believed in Lord Jesus Christ, they suffered so much persecution from the Orthodox Jews. और क्योंकि और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग यहूदी मत से निकल करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, वो लोग सताए गए उन यहूदियों के द्वारा जो अपने उस मत को नहीं छोड़े। And they started persecuting these converted Jews. और ये जो बदल गए हैं, जो उद्धार पाए हुए मसीह बन गए हैं यहूदी, उनको सताने लगे। And they were not giving their children in marriage to these people, though both are Jews. और क्योंकि जबकि दोनों यहूदी है, लेकिन फिर भी अपने बेटे बेटियों को उन्होंने मसीहियों को शादी नहीं दिया। Not only that, ना केवल इतना, they started looting their properties. उनके धन दौलत को वो लूटना शुरू कर दिया। Not only that, ना केवल इतना, they became the gauging stock. Everybody, they started speaking very sarcastically by seeing these converted Jews. और इन बदले हुए यहूदियों को देख करके दूसरे लोग ठट्टा मजाक करने लगे और बहुत ही मखौल उड़ाने लगे। So they were subjected to so many तो difficulties देखते हैं बहुत सारे कठिनाइयों में से ये मसीह लोग because of their faith in Lord Jesus Christ. क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया Today था। also you are seeing the same situation across the world. आज भी आप यही परिस्थिति को इस पूरे विश्व में देख रहे Go हैं। to different parts of the world. इस दुनिया के अलग-अलग जगहों में आप जाइए। Those people who are truly following Lord Jesus Christ, they are put to so much sufferings, so many difficulties. जो लोग सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना विश्वास को रखे हैं, उन लोगों को कई तरीके से सताया जा रहा Even है। in our own country. हमारे खुद के देश I के, need not explain what is happening mainly in North India. मुझे इस बात को समझाने की बताने की जरूरत नहीं है कि खास करके उत्तर भारत में क्या चल रहा है। Suppose if you are a Christian, how many restrictions are there? यदि आप मसीही हैं तो आपके लिए कितना सारा जो है रोड़े अटकाए जा रहे Sometimes हैं। you are not allowed even to have a Thanksgiving meeting in your own house. कई बार आप अपने घरों में धन्यवाद की सभा भी नहीं रख पा रहे। Suppose God has done some favor to you, some benefit. मान लीजिए आपके घर में प्रभु ने कुछ आशीष दी, कुछ अच्छा काम किया है, Or your son got a job, or your son got married. या आपके पुत्र को नौकरी मिली है या पुत्र की शादी हुई है। If you want to arrange a Thanksgiving meeting, और यदि आप एक धन्यवादी सभा रखना चाहते हैं, it is becoming very difficult nowadays. ये आज के दिनों में देखते हैं बहुत ही मुश्किल हो रहा है। So in those days also severe persecution was there for those converted Jews. तो उन दिनों में भी जो यहूदी मसीह बन गए थे उनके लिए ये बड़ा कठिन समय हो गया। One thing you have to understand here. एक बात यहाँ पर आपको समझना बहुत जरूरी है। Right from the first family, Adam and Eve, पहले परिवार आदम और हवा से लेकर के till today, आज के दिन तक whoever stood on the side of the Lord, they were persecuted. जो कोई भी प्रभु मसीह के साथ खड़ा था वो सताया गया। Persecution is not started today. ये जो पीड़ा उत्पीड़न है या सताया जाना है आज से आरंभ नहीं है। Why Abel was killed? क्यों आबिल को मारा गया? Has he committed any mistake? क्या उसने कोई गलती की थी?
He is a good believer. वे बहुत अच्छा विश्वास है। According to the word of God, he was living. प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिता The रहा था। other person who is not living according to the word of God killed Abel. और जो दूसरा व्यक्ति जो प्रभु के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिता रहा था, उसने हाबिल की हत्या कर दी। Why Daniel was thrown into the prison क्यों or in the lion's den? क्यों दानियल को सिंहों के मान में डाला गया? Yeah, he has not committed any mistake. उसने कोई गलती नहीं की थी। Why those three Jewish young people, they were thrown into the fiery furnace? क्यों वो तीन यहूदी लोग सदरक मेशक अबेदनगो जो उस आग के भट्टी में डाले गए? Even in the New Testament, why Peter and John, even Apostle Paul, they were beaten regularly. और यहाँ तक कि नए नियम में हम देखते हैं पौलुस प्रेरित को या और पतरस को देखते हैं बार-बार वो मार खाए। If you are standing for God, यदि आप- undoubtedly persecution will be there. यदि आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आपके ऊपर परीक्षाएं आएंगी, प्रताड़ना आएंगी। A compromising Christian may not have persecution. An Orthodox Christian will suffer persecution all the time. एक सही मसीही जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उसके ऊपर सताव जरूर आएगा, पर यह हो सकता है कि जो नामधारी विश्वासी उनके पर ना आए। I tell you, as long as the world exists, always Cain will try to kill Abel. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक ये संसार है तब तक कैन हाबिल को मारता रहेगा। So the Orthodox Jews, they started persecuting the people, the Jewish people who accepted Christ as their savior. सो जो यहूदी लोग थे जो यहूदी मत को मान रहे थे, वो लोग जो बदले हुए यहूदी जो मसीह को पा लिए थे उनको वो सताने लगे। That is what Paul is writing to the Hebrew believers, और यही बात इब्रानी के विश्वासियों को पौलुस to लिखता है encourage them. कि उनको वो प्रोत्साहित। Do you know what he is writing in 10th chapter? आपको पता है 10 अध्याय में वो क्या कहता है? Verses 30, 31 and 32. 30, 31 और Or 32, 33, 34. या 30 से 34 तक, 32 से 32 से हाँ। 34 तक। हाँ। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो पिछले दिनों को स्मरण करो। क्या हुआ पिछले दिनों में? जिनमें तुम ज्योति पाकर ज्योति पाकर, दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। one side you are illuminated and the other side you endured great affliction. यहाँ पर दो बातें बता रहा है कि एक तरफ तुमने ज्योति पाई और दूसरी तरफ तुमने बड़े संघर्ष से स्थिर रहे। Those people who are not illuminated, who are not born again, they are not suffering. और जो लोग ज्योति नहीं पाए, जो लोग नया जन्म नहीं पाए, वो नहीं प्रताड़ित हो रहे So हैं। what Paul is writing? या पौलुस क्या लिखता है? After you are illuminated, जब तुम ज्योति पा गए, not ordinary suffering. In the Bible it is written, great fight of affliction. और Great. ऐसा नहीं कि बहुत साधारण सा जो है संघर्ष है, यहाँ लिखा है बड़े दुखों के बड़े संघर्ष में से। And 33. और उसके बाद 33 में कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए हाँ। तमाशा बने। You became tamasha, you became a gazing stock. Everybody is laughing at you. हर एक लोग आपके ऊपर जो है तमाशा बना रहे हैं, हंस मखौल कर रहे हैं। Not only that, in verse 34, और ना केवल इतना 34 वचन में they have spoiled all your property, your goods. क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी। All these things, Paul is reminding the converted Jews. ये सारी बातें जो यहूदी मसीही बन गए थे उन सबों को ये बात याद After है। you are illuminated, great suffering you face. जब ज्योति पाए तुमने बहुत दुख का सामना किया। And not only that, people they laugh at you, tamasha ban. और ना केवल इतना बल्कि लोग तमाशा बनाए And they have taken away your goods, they looted your और property. तुम्हारे संपत्ति को भी उन्होंने लूट लिया। And if you see more and more, yeah, they were not giving their children in marriage to their children. और अधिक देखेंगे तो अपने बच्चों को शादी ब्याह में नहीं देने लगे। Brothers and sisters. भाई और बहनों, So they were suffering a lot. तो हम देखते हैं वो बहुत दुख उठा रहे हैं। Because of that suffering. और उस दुख उठाने के कारण Slowly, they are becoming in their faith, weak in their faith. तो धीरे-धीरे अपने विश्वास में वो कमजोर होते जा रहे हैं। We accepted Lord Jesus Christ. Why all these troubles? अरे हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्यों ये सारी My समस्या? daughter is not getting married. अरे मेरे बेटी की शादी नहीं हो My रही son है। is not getting married. मेरे बेटे का शादी नहीं They हो are रहा है। looting all my property. जो मेरे संपत्तियों को ये लूट Why रहे हैं। all these things? क्यों ऐसा हो रहा है? Okay, I want to leave Lord Jesus तो Christ. अब मैं ये निर्णय लेता हूँ कि मैं प्रभु को छोड़ दूंगा। By seeing the problems and the persecutions, कि इन सताहट को, इन दुखों को और संघर्ष को देखते they हुए wanted to go away from the Lord. वो प्रभु से दूर जाना चाहते थे। But लेकिन to encourage them not to go away,
Paul wrote this letter. कि उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि तुम मसीहत को नहीं छोड़ो, प्रभु को नहीं छोड़ो, पौलुस ने ये पत्री को उनके लिए लिखा। That because he is writing to Hebrews, क्योंकि उसने इब्रानियों को लिखा है that is those are the Jewish people converted. कि जो यहूदी लोग मसीही बन गए थे। That's why in the book of Hebrews you can see about Moses, about Melchizedek, about the tabernacle, about the sacrifices, about the feast. All the things what we read in Exodus and Leviticus and Numbers we can see there. और इसलिए इब्रानी के पत्र में आप पुराने नियम की बातों को मोजेस और मेलकीसेदेक मूसा के विषय में और तम्बू के विषय में, मेलकीसेदेक के विषय में और बलिदान चढ़ाने के विषय में, लेवी व्यवस्था की बातों के विषय में आप बहुत आज से इस बारे में So देखते a हैं। common Gentile cannot understand those things. तो एक अन्य जाति जो सामान्य है इन बातों को नहीं समझ So पाता है। especially this is written to the Jewish people who are converted and who are persecuted, not to lose their faith. तो इस बात को याद रखें, खास करके उन यहूदियों के लिए जो यहूदी मत को छोड़ करके मसीही बन गए थे, उनके लिए ये किताब लिखा That's गया। why he is writing to them. और इसलिए उनसे कहता है, Oh my brethren, ओ मेरे प्रिय भाइयों, without faith it is impossible to please him. बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना अन होना है। And in 11th chapter he wrote about so many men and women of God. और 11 अध्याय में उसने कई सारे स्त्री और पुरुषों के विषय में लिखा। About the heroes and we can say the heroines of faith. और जो हम देखते हैं हीरो और हीरोइन जो फेथ के हैं, विश्वास के, उनके बारे में लिखा। Why? क्यों? To encourage those people. ताकि उन लोगों को वो प्रोत्साहित करे, Don't get discouraged. हताश नहीं हो। This has not started with you today. आज ये तुमसे केवल आरंभ नहीं हुआ This है, persecution is right from the first day. और ये सताहट पहले दिन से आरंभ है। That's why he started with Abel. और इसलिए आबेल के बारे में बात कर रहा Oh, he wrote about Abel in verse 4. और 11:4 में हाबेल के विषय में लिखता है। And about Enoch he wrote in verse 5. उसके 5 वचन में हनोक के विषय में लिखता In है। verse 7 he wrote about Noah. 7 में नूह के विषय में लिखता And है। from 8th verse onwards he started writing about Abraham and Sarah. और 8 से आगे वो अब्राहम और सारा के विषय में लिखता है। And those people who wanted to maintain their faith, always they suffered and suffered. This suffering is not new to you. जो लोग विश्वास को अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं, वो हमेशा दुख उठाए हैं, ना इसमें आप और मैं भी शामिल हैं। Now about he is writing to them. और वो उनको लिख रहा है। After Abraham he wrote about Isaac and Jacob and Joseph and Moses. और अब्राहम के बाद इसहाक के बारे में और याकूब के बारे में, यूसुफ के बारे में और मूसा के बारे में लिखता So है। he wrote so many other people. तो बहुत सारे अलग-अलग लोगों के विषय में उसने लिख And he दिया। writes there are so many other people, the time will not be sufficient, and Paul is writing. और पौलुस यहाँ पे लिखता है कि समय नहीं पूरेगा अगर मैं सबके विषय में लिखना शुरू करूँ। And now what he is telling और अब वो क्या कह रहा है? in verse 38. 38 वचन। Oh, they are the people of faith. For them this world is not worthy. और जो विश्वास के लोगों के लिए ये संसार योग्य नहीं है। This is not our world. ये हमारा संसार ये योग्य नहीं, हमारा Yeah, नहीं as है। Peter is writing, we are pilgrims and strangers here. और यहाँ पर लिखने वाला कहता है कि हम यहाँ पर As Peter is writing. पतरस जब लिखता है कहता है कि हम इस संसार में यात्री और मुसाफिर हैं, Only for few days. केवल थोड़े दिनों के You लिए। are a pilgrim here. तुम यहाँ पर यात्री हो, You are a stranger तुम here. यहाँ पर एक मुसाफिर हो, All these difficulties will be for few days only. और ये तकलीफें तुम्हारे लिए थोड़े दिनों की है। So be encouraged. तो इसलिए उत्साहित हो, Don't lose your faith. अपने विश्वास को ना छोड़ो। Do you know why? आपको पता है क्यों? Without faith it is impossible to please वो him. इसलिए क्योंकि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अधूरा All है। these great men of God, they suffered and suffered and suffered till they died. जो सारे महान पुरुष प्रभु के ये दुख उठाते रहे और अंत में अपने जीवन को दे दिया। But they obtained a good report. लेकिन उनके बारे में लिखा गया, उन्होंने उनके बारे में अच्छा Oh, लिखा they गया। stood for God till the end. आखिरी तक प्रभु के लिए वो खड़े रहे। So this is the background of the letter to Hebrews. So ये इब्रानी की पत्री का पृष्ठभूमि है। Because before reading any portion, unless you know the background in a little bit detail, it is difficult to understand the context. तो हम इसलिए बता रहे हैं कि इससे पहले कि हम आगे बढ़े और इसके बारे में और अधिक पढ़े, इसके पृष्ठभूमि को, इसके संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। So especially this letter is written to those
persecuted believers. और इसलिए खास करके ये उन यहूदियों को लिखा गया था जो यहूदी मत को छोड़कर मसीही बन गए, और उन मसीहों को ये पत्र लिखा गया। And whenever I am reading the things that are happening in North India, especially in these areas like UP or UK, Uttarakhand, and even Punjab and Haryana and Delhi and other places, Himachal, Madhya Pradesh, and I thought after praying, this is the right thing to be given here, because people are under persecution. और जब मैं इन उत्तर भारत के जगहों को देखता हूँ, दिल्ली को देखता हूँ, हरियाणा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सारे इलाकों को जब मैं देखता हूँ, मेरे अंदर बोझ आया कि ये समय बिल्कुल सही है कि इस थीम को, इस मुख्यांश को हम देखें कि विश्वासी गण अपने विश्वास को न छोड़ें। We may not be suffering like those people like Abel and others, but to some extent we are tasting the sufferings because of our Christianity. हो सकता है हाबिल और दूसरे लोगों की तरह हम उतना बड़ा संघर्ष में से नहीं जा रहे हो, लेकिन हम इस बात को जरूर चख रहे हैं कि हमारे चारों ओर विश्वासियों के साथ क्या कुछ हो रहा है। Abel lost his life. हाबिल का तो जीवन चला गया, And Abraham lost so many things. He left everything and followed Jesus. और अब्राहम ने सब कुछ अपना घर-बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चल गया। People made Noah, as a laughing stock. नूह को लोगों ने कई बार खट्टों में उड़ाया। What this man is doing? अरे ये व्यक्ति क्या कर रहा है? Till the days of Noah, there was no rain on the earth. और इस बात को समझ ले कि नूह के दिन तक पृथ्वी पर कभी बारिश हुई नहीं। Almost 16 centuries. और ये समझ लो कि कम से कम 16 शताब्दी तक। After Adam was created in the year 1656, the flood, Noah's flood came. और 1656 में जब से आदम बना, 1656 में नूह के समय वो बाढ़ और बारिश आई। Till that time there was no rain. उस समय तक 1600 साल तक कभी बारिश नहीं हुई। Then how these plants were growing? तो ये पेड़ कैसे उग रहे थे? And how they were giving fruits and all these things? और कैसे उनमें फल और फूल लग रहे थे? So it is written, as we know, in Genesis chapter 2. और जैसे हम जानते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय में यूं लिखा हुआ है। And the vapor from the earth it was coming. और ये ओस जो आता था पृथ्वी के ऊपर, उससे Verses 5 and 6. 2 अध्याय का 2, 5 and 6. 2 अध्याय का 5 और 6। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और न मैदान में का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया। पृथ्वी पर जल नहीं। और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती। The mist from the earth, it was watering the whole earth till the days of Noah. नूह के दिनों तक कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंची जाती। So the earth was becoming wet. तो पृथ्वी जो है वो भूमि मिट्टी गीली हो जाती है। And then the harvest was there. तो उसमें से फिर वो फसल उगते थे। And suddenly when Noah started preaching about rain, और जब अचानक नूह ने बारिश के विषय में प्रचार करना शुरू and किया, what those people are telling, तो लोग क्या कह रहे हैं? अरे ये लोग पागल हो गए यार। He is gone mad. 1600 साल तक का अभी तक एक बार भी पानी नहीं है। 1600 years there is no rain. अरे what is rain? ये नया चीज बोल रहे हैं। ये क्या नया चीज बोला? What is new thing is talking about? वो पागल हो गया। He is gone mad. हाँ, और देखो कितना बड़ा वो जहाज बना रहे हैं। And see how big ark is making. हाँ, you see, exactly the size of Noah's Ark. There is an ark that is prepared in America, in Kentucky. Noah's Ark, there is a place. और नोआस आर्क करके एक जगह है अमेरिका में, केंटकी में, और वही साइज उसी बड़ा विशाल का है, उसको बनाया गया है। There it is written. और वहाँ ये लिखा हुआ है Around 6,744 species of different beings are accommodated in that ark. 6,744. 6,744 प्रकार के जीव जंतु के प्रकार उस जगह पर वहाँ पर संजो के रखे गए हैं। And so it is a big ark. बहुत बड़ा जहाज है। If you go to America, you please see it once. यदि आप अमेरिका जाएं तो इस नोआस आर्क को जरूर देखें। अमेरिका नहीं जा सके तो इधर ही एक जहाज बनाओ। अगर अमेरिका नहीं जा सकते तो यहाँ एक जहाज बनाओ। So it is a big ark. बहुत बड़ा जहाज। So when Noah was speaking about rain and preparing the ark, everybody was laughing at Noah. ये क्या इधर से आया रहा है ये बादल। ये नोआ जब इस बात के लिए प्रचार कर रहा था कि बारिश आएगी और जहाज को बना रहा था, तो लोग पागल समझे कि ये कहाँ से आया ये व्यक्ति। So whenever a person wants to follow God
and God's word, he will be persecuted, he will be laughed at. तो जब कभी एक व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलता है, परमेश्वर के बारे में बात करता है, बताता है, उसके ऊपर मखौल किया जाता है। Suppose today if you are preaching the gospel, यदि मान लीजिए आप एक वचन प्रचार कर रहे हैं, suppose if you are talking to somebody about Lord Jesus यदि Christ, आप में से कोई प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक दूसरे को बता रहे हैं, what they will do? क्या बोलेंगे? They will laugh at you. आपके ऊपर हंसेंगे। Not only that, they will persecute you. ना केवल हंसेंगे बल्कि आपको प्रताड़ित भी This करेंगे। is not new today, this is there right from the book of Genesis. ये उत्पत्ति से चला आ रहा है प्रियो, ये आज के लिए कोई नया नहीं But है। in such a situation, लेकिन ऐसी परिस्थिति में what will encourage us? क्या हमें प्रोत्साहित करता है? Our own faith. हमारा खुद का When विश्वास। you are having faith in the midst of all these contrary situations, जब इन सभी विरोधाभास परिस्थितियों के अंदर आपका विश्वास जब उठता है, and then God will be very much pleased at your faith, तो परमेश्वर आपके विश्वास से बहुत प्रसन्न होता है and He will work on your behalf. और वो आपके बदले में, आपके पक्ष में काम करेगा। Without faith, it is impossible to please God. बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। So this is the introduction about the book of Hebrews, तो ये इब्रानी के पुस्तक का एक परिचय है and slowly we are going to see a little bit more in the second part. और धीरे धीरे हम दूसरे सत्र में इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, अध्ययन करेंगे। Yeah, brother Umar Reddy brother has given exactly by 10 o'clock. I am leaving you exactly by 11 o'clock. मराठी भाई ने मुझे 10 बजे समय दिया, मैं 11 बजे आपको छोड़ रहा हूँ। हाँ, तो भाई आ रहे हैं। हमारा दोनों का वॉच एक ही तरफ होता है। Right. Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित सच्चे ना बदलने वाले विश्वास योग्य धन्य अध्यापी पिता सरकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ सूचे से राय नाम से आपके चरणों में झुकते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए। पहले सत्र में प्रभु जी आप